good morning. I have a message of Dr. U.S. Pandey. I am pleased to welcome this message of Dr. U.S. Pandey, sir, who is presently OSD of School of Open Learning. This webinar is the brainchild of Dr. U.S. Pandey, sir. सबसे बड़ी बात, he had more than 50 research papers and 10 books and more than 100 YouTube videos. He is now OSD of School of Open Learning. Under his supervision, School of Learning is conducting this type of webinars. As I told earlier, this is the brainchild of Dr. U.S. Pandey sir. अभी हम उनका एक वीडियो आपको दे रहे हैं, उसके बाद we'll start this thing within 2 minutes. Thank you so much. See the video of Dr. U.S. Pandey sir. Professor Balram Pani, Director, Campus of Open Learning. Dr. Jay Kuntia, Associate Professor, School of Open Learning. Sri K.B. Gupta ji, Associate Professor, Department of Commerce. And my colleague, Dr. Anurag Mittal ji. All the participants are most welcome in this event. We are organizing this entrepreneur cells activity where we are doing a lot of activity at the School of Open Learning. From last year, we have a dedicated cell in the School of Open Learning for this purpose, which is doing a lot of activity for the students as well as for other persons also. Besides that, we have already established a CSC, Common Service Center, which is also providing help to the students as well as to the common people also. Mr. Anurag Mittal ji is looking after this entire cell, and in this series, we have already planned for a mega event in the month of March, but due to lockdown, we are not able to do that. And now we have come up with a new series of this webinar series, where we will provide all the information related to the entrepreneurship. Especially what is the Prime Minister's different kind of Yojana the provided going to be helpful in all entrepreneurs, MSME, as well as Mudra loan or different kind of other initiative taken by the government of India as well as the different states of the India. Not only this, even internationally, what different kind of aids are available to do the startup. So all these kind of things will be covered in all 6 days event. Besides Anurag Mittal, other dignitaries will also provide you the help, how to fill up the form, how to start the startup, what kind of benefits you can get without guarantee from the banks and other kind of bills. So we again wish for all good for this entrepreneurship entire webinar. Thank you very much to all. Good morning to all the participants. I welcome you all to this entrepreneurship session organized by Entrepreneurship Cell at School of Open Learning. This is the first session in a series of 6 webinars which will be organized. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, there are so many webinars which are happening, so many classroom sessions which are happening. What is the unique point of this particular initiative which has been taken by the Entrepreneurship Cell? If you can see the heading, how to become a successful entrepreneur, followed by Atmanirbhar. It is not only about becoming an entrepreneur. बहुत से लोग हैं जो अपना venture start करते हैं, लेकिन they may not be successful, or they are initially successful, but on account of various issues, it can be marketing, it can be funding, it can be various other issues, they are not able to succeed and they have to close down. So the objective of this particular webinar is how to become a successful entrepreneur. और इसी के साथ आत्मनिर्भर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आजकल बोलते हैं कि आप अपने को स्वयं लोगों के लिए कैसे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. You can get self-employed and how you can create employment for others. तो मैं आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं और इसमें हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो इसमें हम सब कवर करेंगे. जो पहला स्लाइड है हमारे आज के वेबिनार में, जैसा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं,
इस पे मैंने कुछ कोट्स शेयर किए हैं जो आजकल के टाइम में बहुत ही रेलेवेंट हैं। अगर आप सबसे पहला देखें, बैटल्स आर नॉट वॉन सिटिंग इन बैरक्स। ये कुछ जो कोट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, ये मैंने अपने करियर में कुछ सीखे हैं और उनको इंप्लीमेंट किया है। पहले कोट का मीनिंग क्या है कि अगर आपने लाइफ में कुछ अपने को स्किल करना है, कुछ आपने अपना काम शुरू करना है, और मे बी यू वांट टू स्टार्ट एज एन एम्प्लॉय, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आपको अपने के स्किल करना है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसको एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट करना है। सो बैटल्स आर नॉट वन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अपनी आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में, कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने इकोसिस्टम में, अपने आसपास, वर्ल्ड ओवर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको सक्सेस में उसको कन्वर्ट कर पाता है। सेकंड, आप अगर कोड देखें, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। जैसे आजकल हमारे कोविड में बहुत सारे हमने इश्यूज देखे हैं। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो आपका करेक्टर की रोबोस्टनेस है, वो तभी सामने निकल कर आती है जब आप एक कठिन समय में अपने को उसमें और स्किल कर पाते हैं और मजबूत कर पाते हैं। और जो भी एक ड्रॉबैक है, जो भी एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। एंड द थर्ड वन इज, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा आप अपने को ट्रेन करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने को स्किल करेंगे, ताकि जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, यू आर इक्विप्ड टू फेस देम, उनको आप ओवरकम कर पाएं। तो ये सारे जो मोटोज हैं, ये हमको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करने में ये सेशन आपको मदद करेंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत बारी हम ये एंटरप्रेन्योर वर्ड आजकल सुनते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर और एन एम्प्लॉय और बिजनेस? लास्ट में हमने मेंशन किया हाइब्रिड, वो हम बाद में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, डज नॉट मीन कि आप कोई बिजनेसमैन ही हैं। एंटरप्रेन्योर कैन बी अ स्टूडेंट ऑल्सो, एंटरप्रेन्योर कैन बी एन एम्प्लॉय ऑल्सो, एंड देन देयर कैन बी अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नो, व्हाट डज दैट मीन? एंटरप्रेन्योर मीन्स एंटरप्राइजिंग, जो हमने शुरू में या ऊपर में भी आपको बताया। जो स्टूडेंट एक इनिशिएटिव लेता है, जो यूथ है या कोई रिटायरी है, कोई मिड करियर प्रोफेशनल है, एनी पर्सन, कोई होम मेकर है, जो भी अपनी लाइफ में कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, ही इज बेसिकली एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। तो स्टूडेंट यदि एग्जाम्स के लिए इन अ स्मार्ट वे प्रिपरेशन करता है, अच्छे नोट्स बनाता है, अच्छी बुक्स रेफर करता है, मॉक एग्जामिनेशन करता है, दैट इज एन एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट। सिमिलरली आजकल जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, दे आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज, they are looking for smart employees. They are looking for employees who can join the company and can bring value addition. वो जो कंपनी का प्रोसेस है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें, और एक ऑनरशिप की उनमें करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो कंपनी के प्रति कमिटमेंट महसूस करें। दैट इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर। और जो थर्ड कैटेगरी है, विच इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर इज, यदि आप कोई अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू करते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर का काम शुरू करते हैं, या आप कोई ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। सो द फर्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज, डोंट थिंक दैट एंटरप्रेन्योर ओनली मीन्स बिजनेस। सो दिस सेशन इज वेरी यूजफुल whether you are joining the session as a student, whether you are joining the session as an employee, whether you are a homemaker, whether you are a mid-career professional, or whether you are a full-time employee. This session is for all. एंटरप्रेन्योर के अंदर जो हमने एक आपको थर्ड कैटेगरी बताई थी, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर के अंदर देयर आर 3 कैटेगरीज, जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग। एक मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को इस सेशन का एक जो यूएसपी, जो एक यूनिक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो हमने सेशन एक एसओएल के इनिशिएटिव के अंदर स्टार्ट किया है, सिंस 2009 आई हैड बीन वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 2 मिनिस्ट्रीज, जो आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट है जानना। एक है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री जिसमें कोई भी लघु उद्योग यदि स्टार्ट करना चाहता है या उसका एग्जिस्टिंग उद्योग है,
उसको डाइवर्सिफाई, उसको एक्सपैंड, उसमें एक्सपोर्ट्स में या डोमेस्टिक सेल्स में जाना चाहता है, उसके लिए एमएसएमई की मिनिस्ट्री थी। 2014 में द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुक एन इनिशिएटिव, और जैसा कि आपने सुना है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस दिया है। और उसी फोकस की कंटिन्यूटी में 2014 में अ न्यू मिनिस्ट्री वाज इनिशिएटेड व्हिच इज कॉल्ड MSDE, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये दो मिनिस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी हम सेशंस करते हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स को ये नॉलेज ही नहीं होती कि उनकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द नोडल मिनिस्ट्री, क्योंकि यदि आप कोई अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, अपना कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कौन से कंसर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जहां से आपको वेरियस स्कीम्स के अंदर, चाहे वो लोन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, देयर आर टू मिनिस्ट्रीज एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। फर्स्ट इज MSME और उसके साथ 2014 के बाद MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसा कि आप नाम में देखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन स्किलिंग। आप अपना उद्योग तभी शुरू कर पाएंगे जब आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई स्किल है। उस स्किल को आप एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या उस स्किल को आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन तीन कैटेगरीज को जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया, कुछ सालों में, जैसे आपने .com बूम सुना, ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में सुना, देयर आर टू न्यू कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स व्हिच हैव कम। मोस्टली आप अपनी बुक्स में भी जो पढ़ते हैं, चाहे वो 10+2 लेवल पे है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या ट्रेडिंग। लेकिन आजकल इन द डिजिटल इकोनॉमी देयर इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु हैव कम इन, जो हमने स्लाइड में मेंशन किया है, ऑनलाइन एंड वर्चुअल एंटरप्रेन्योर। ऑनलाइन एंड वर्चुअल एंटरप्रेन्योर का व्हाट इज द गुड पार्ट? द गुड पार्ट इज you can work from the comfort of your home. You don't need to have a physical office space. मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कोई फैक्ट्री चाहिए, आपको कोई लोकेशन चाहिए। सर्विसेज के लिए चाहे वो हेयर सैलून हो, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आप जहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोरियर कंपनी है, अगेन यू नीड टू हैव अ फिजिकल स्पेस। ट्रेडिंग के लिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं, या फॉर एग्जांपल पंजाब से आप कुछ वुलन गारमेंट्स खरीदते हैं, उसको दिल्ली में आप सेल ऑफ करते हैं, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। उसके लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, उसके लिए आपको स्टोर चाहिए। सो इन द ऑल थ्री कैटेगरीज यू नीड टू हैव अ फिजिकल एड्रेस, बट इन द लास्ट टू कैटेगरीज देयर इज नो नीड फॉर अ फिजिकल ऑफिस स्पेस। यू कैन वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, और यू डोंट इवन नीड टू हैव अ फिजिकल डिटेल एड्रेस। इसमें जनरली अगर आज आप देखें, बहुत सी ऐसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके विजिटिंग कार्ड पे उनका सिर्फ ईमेल होता है। इट डजंट मेंशन द ऑफिस एड्रेस, बिकॉज मोबाइल फोन, ईमेल, स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड्स, थ्रू दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टूल्स दे आर बेसिकली डूइंग देयर बिजनेस। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपने फुल टाइम जॉब के साथ they want to have some kind of an additional income in their spare time, so that, जैसा हमने शुरू में बोला, when the going gets tough, you have some backup option available with you. So in the first slide we have basically said entrepreneur की तीन categories traditionally होती थी, लेकिन now in the recent years there are new kind of entrepreneurs which have come up. इन्हीं को हम अब आगे लेके चलते हैं। जब भी आपको अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करनी होती है, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री। इस स्लाइड में अगर आप देखें टॉप पे, उस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री, जहां पे कोई भी आपका लघु उद्योग है, या आपका कोई स्टार्टअप है, या आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें आप मार्केटिंग असिस्टेंस चाहते हैं, उसमें आप कोई क्वालिटी एक्रेडिशन चाहते हैं, उसमें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, उससे संबंधित क्या लोन्स की फैसिलिटी है, क्या ग्रांट्स की फैसिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिलेगी। इस वेबिनार में, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, देयर आर मेनी यूनिक पॉइंट्स। व्हाट इज अ यूनिक पॉइंट? आजकल अगर आप देखेंगे, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज।
आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या एक एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल है इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वो वर्ल्ड ओवर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सबको पढ़ के, उसको एसिमिलिएट करके, उसको यूज कर सकता है? इन वेबिनार्स में हमने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपके टूल्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको सिलेक्ट करके इन पर्टिकुलर वेबिनार्स में शॉर्टलिस्ट करके आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है एंटरप्रेन्योर्स को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। यदि उनको इंफॉर्मेशन होती है तो उस इंफॉर्मेशन में जो स्कीम्स हैं उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे अप्लाई करें। अगेन इन वेबिनार में 2009 से लेके करंट 2020 जो भी एंटरप्रेन्योर से फीडबैक मिला है, उनके क्या फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज आते हैं, यदि वो बैंक में जाते हैं तो उनको फंडिंग मिलती है बिना कोलैटरल के या नहीं मिलती, उनको मार्केटिंग में क्या इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट को वो कैसे अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच सकते हैं, वो सारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो हम इन वेबिनार्स में कवर अप कर रहे हैं, ताकि जो डे टू डे इश्यूज हैं जो बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आपके सॉल्व नहीं हो पाते, वो इस पर्टिकुलर सेशंस के अंदर जो आपके कंसर्न्स हैं उनका हम आपको सॉल्यूशन बताएं, और ना सिर्फ सॉल्यूशन बताएं, उन सॉल्यूशन को कैसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वी विल हेल्प यू। सो एज यू कैन सी दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसके अंदर आपका लघु उद्योग आता है। आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब भी आपने अपना काम शुरू करना है, आपको एक बिजनेस की आइडेंटिटी चाहिए। जैसे आपका पासपोर्ट होता है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका पैन कार्ड होता है, इसी तरीके से यदि मुझे अपना एक माइक्रो बिजनेस शुरू करना है, अगेन अगर आप टॉप पर देखेंगे हिंदी में भी वहां मेंशन है सूक्ष्म, लघु एंड मध्यम, एंड इंग्लिश में माइक्रो स्मॉल। सो यदि आप में से कोई है, कोई उसको एक अच्छा आइडिया दिखता है और वो चाहता है कि मुझे अब एंटरप्रेन्योर बनना है, या मैं फुल टाइम जॉब करती हूं और उसके साथ मुझे कुछ सप्लीमेंटल इनकम के लिए जो मेरा स्पेयर टाइम है उसके लिए मुझे कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू करनी है, कोई एनजीओ शुरू करनी है, मैं कैसे स्टार्ट करूं? उसको स्टार्ट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज उद्योग आधार योजना। व्हाट इज एन उद्योग आधार योजना? इट इज योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगेन जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ने ही हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी देखेंगे, देयर आर मेनी प्लेसेस हायर अप which India has come because they have simplified the business processes. उसी कड़ी में ये एक इनिशिएटिव है। आज आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू, अपने डेस्कटॉप के थ्रू, या किसी कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर कैफे पे जाके, wherever you are sitting or wherever you have your business, you can register your company, which is called उद्योग आधार योजना। आपको इसके लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। You don't need to go to any government office. Wherever your business is there, or if you are a virtual entrepreneur, आप अपने घर से कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन जाके you can do and register your company, जिसको हम कहते हैं sole proprietorship. There are various categories of businesses: partnership, private limited company, public limited company, one person company, society, trust. लेकिन जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था, हमारा इन वेबिनार्स में फोकस रहेगा नॉट टू कंफ्यूज यू विद द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बट टू टेल यू अ इजी रोड मैप। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आजकल टेक्नोलॉजी जीपीआरएस है, उसमें आप अपना डेस्टिनेशन फीड कर देते हैं ताकि आपको वो डायरेक्शन देते हुए आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दे। इस वेबिनार जो सीरीज हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है उसमें से ना सिंपल लैंग्वेज, इस जो वेबिनार को जो अभी अटेंड कर रहे हैं, देयर मे बी मेनी पार्टिसिपेंट्स हु आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, देयर मे बी सम साइंस बैकग्राउंड पार्टिसिपेंट्स, देयर मे बी सम होम मेकर्स, देयर मे बी सम पीपल हु आर जस्ट स्टडिंग, कई स्कूल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, देयर मे बी सम रिटायरीज, देयर मे बी सम मिड करियर प्रोफेशनल। सो फॉर ऑल दोज पीपल, अगर उनके पास एक अच्छा आइडिया है, they don't want to get into what is a sole proprietorship, what is a partnership, how should I register my one person company, this is the objective of this webinar. So उसी में हमने सबसे पहले आपको बताया 2 मिनिस्ट्रीज जिससे डायरेक्टली आपका लिंक है और जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है, सोल प्रोप्राइटर इज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट एंड द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए
आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं उद्योग आधार योजना। अब उद्योग आधार योजना हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें रजिस्टर हमें कहां पे करना है? अगेन उसका जो सॉल्यूशन, यू हैव टू गूगल MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम। उसके होम पेज पे आपको एक कैप्शन दिखेगा जहां से हमने स्क्रीन प्रिंट लिया है, उद्योग आधार योजना। उस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। वो भी हम आगे के जो वेबिनार्स हैं उसमें एक सैंपल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे वो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, दैट्स इट। यू डोंट रिक्वायर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहले डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे वो सब अब नहीं रिक्वायर्ड है। आपको सिर्फ अपना उद्योग आधार नंबर चाहिए, उसको आप इसमें फिलअप करेंगे और वो सेल्फ आपके नंबर को वैलिडेट करके, इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करके, आपसे उसका अप्रूवल लेके सबमिट करके in less than 15 minutes your company is registered. So you can see the ease of doing business. So जो भी webinars के participants हैं, चाहे वो राजा मुंद्री से हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या वो नॉर्थ इंडिया दिल्ली NCR एरिया से हैं, wherever you are you can go to this website and register. इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन आती है कि मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। जैसे आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक PDF फाइल नंबर आती है आपके ईमेल पे, जिसमें ये लिखा गया होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आपका सोल प्रोप्राइटर का वेंचर रजिस्टर हो गया है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डिटेल में उसमें मेंशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर इज फर्स्ट स्टेप इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और ये आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि यस, आई एम अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटरप्राइज। द वर्ड रजिस्टर्ड बिजनेस एंटरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आपको बैंक में जाना है, आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट करना है, एवरीबडी विल आस्क यू, क्या आपका बिजनेस, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है? यू कैन वेरी प्राउडली से यस, आई एम अ रजिस्टर्ड एंटरप्राइज। एंड द गुड पार्ट इज, आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना, यू डोंट नीड टू स्पेंड अ सिंगल रुपी। जो आपका आधार नंबर है, दैट इज ओनली योर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड। देयर इज नो फीस फॉर दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन, जैसे मैंने आपको वेबिनार में बताया और आगे भी हम शेयर करेंगे, इस वेबिनार में हमारा मेन फोकस यही है, जो एंटरप्रेन्योर्स की डे टू डे इश्यूज आते हैं। आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू कीप दिस वेबिनार सीरीज जस्ट अ थ्योरेटिकल काइंड ऑफ अ सेशन। इसमें जो भी आपको स्लाइड दिखाए जा रहे हैं या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, 2009 से लेके 2020 के बीच में जो एंटरप्रेन्योर्स के मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो कंसर्न्स व्हाइल आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द पीरियड आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भी मैंने डे टू डे बेसिस पे उनके इश्यूज देखे, या जो SOL E-Cell में लास्ट 1 ईयर से हमने जो अपना E-Cell स्टार्ट किया है, उसमें स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को क्या इश्यूज फेस आते हैं, उन सब को हमने इन वेबिनार्स में एसिमुलेट किया है और वो हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड देख रहे हैं जिसकी हेडिंग है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आई हैव बीन टू वेरियस सेमिनार्स इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। बहुत से सेमिनार्स, पेपर में भी आप ऐड देखते होंगे कि आज पर्टिकुलर होटल में या पर्टिकुलर किसी कॉन्क्लेव में फंडिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो फंडिंग है वो आप वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकते हैं, वो आप एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं। अब अगेन, जो एक स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर है, कोई गांव में है, कोई रिमोट एरिया में है, और मे बी समबडी हु इज इन द सिटी, जिसका कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, और मे बी ही और शी इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, he or she may have studied long time back. What is this angel investor? What is this venture capital? How to access them? Again, solution. अगर आप अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं और आपको फंडिंग की आवश्यकता है, this is the only and the best scheme which you should straight away apply. There is no need to go to a venture capitalist or to an angel investor at the first stage itself. It all depends. So बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इस स्कीम के बारे में मालूम ही नहीं होता, या उनको मालूम होता है तो इसमें अप्लाई कैसे करें। ये दोनों एस्पेक्ट हम इन वेबिनार्स में कवर अप करेंगे। अगेन, द गुड पार्ट अबाउट दिस स्कीम इज, जब भी आप अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपके दिमाग में फीलिंग आती होगी
कि मुझे रजिस्टर करने के लिए किसी सीए के पास जाना है, किसी लॉयर के पास जाना है, किसी कंपनी प्रोफेशनल के पास जाना है। जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, यू कैन यूज योर स्मार्टफोन, योर लैपटॉप। यदि आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, यू कैन गो टू अ कंप्यूटर कैफे। सेकेंड थिंग इज फंडिंग, फाइनेंशियल। उसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गूगल करना है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है वो आपके सामने होम पेज आ जाएगा। यदि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन है और एक नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेशन है। अभी हम इंडिविजुअल एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो उद्योग है, आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट है, उसमें या तो आप एक स्वयं है, या आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं। इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ अ सेटअप। उसके लिए वी विल कॉल इट सोल प्रोप्राइटर, और आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट है। इस स्कीम के अंदर आपको 10 लाख से लेके 25 लाख तक की फंडिंग मिलती है। आई रिपीट, फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज। अगेन, इन माई डे टू डे इंटरेक्शंस, जितने भी लघु उद्योग मैंने देखे हैं और गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स हैं, उनकी डेफिनेशन ये में देखा जाता है कि 10 लाख से 25 लाख के बीच में एक लघु उद्योग को आप इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। इसको और थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। यदि आपने कोई सर्विस रिलेटेड काम शुरू करना है, सर्विस रिलेटेड मींस व्हाट, आपने कोई मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक शॉप खोलनी है, आपने कोई सैलून खोलना है, आपने कोई टीचिंग एकेडमी खोलनी है, आपने कोई ट्रेनिंग एकेडमी खोलनी है, आपने कोई कंसल्टेंसी, वेदर इट कैन बी एडवोकेट, इट कैन बी लीगल सर्विसेज, it can be preparing the students for competitive examination, or it can be like event management company, it can be like a flower, a home decoration, interior decoration, जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सर्विस प्रोवाइड के लिए इस स्कीम के अंदर आपको 10 लाख रुपीस तक का फंडिंग गवर्नमेंट से मिलता है। अगेन, लेट मी अंडरलाइन, दिस इज अ स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, there is a central government and there is a state government. Again, very important point I am telling you, जब भी आप कहीं पे अपना काम शुरू करते हैं, आप कन्याकुमारी शुरू करते हैं, आप दिल्ली में शुरू करते हैं, आप गुड़गांव में करते हैं, आप नोएडा करते हैं, यूपी में करते हैं, ऑलवेज लुक एट द स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार ओवरलुक हो जाती हैं। सो गो टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गो टू द स्टेट गवर्नमेंट साइट ऑफ हरियाणा, गो टू द स्टेट गवर्नमेंट साइट ऑफ राजस्थान, जिस भी स्टेट में हैं आप, आंध्र प्रदेश, हर एक स्टेट के अंदर एक एमएसएमई का डिपार्टमेंट होता है, और उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर एक एमएसएमई का डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है पैन इंडिया, ओवरऑल इंडिया के पॉलिसी स्कीम बनाना, और स्टेट गवर्नमेंट का है जो भी उस स्टेट पे डोमिसाइल हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, या उस स्टेट में कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई अपना सर्विस का कोई अपना कंसल्टेंसी शुरू करना चाहता है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या बेनिफिट हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक यूज, और यू शुड ट्राई टू टैप द स्कीम्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी को अब हम इससे लिंक अप करते हैं। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जैसा आप टॉप पे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल लिखा है, मैंने उस पर कर्सर पॉइंट आउट किया है, नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, एंड देन वी हैव द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर आज के वेबिनार में सम ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई, इन मुंबई देयर इज अ CMEGP, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। द गुड पार्ट इज 10 लाख फॉर एनी सर्विस रिलेटेड बिजनेस, 25 लाख फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप आइसक्रीम का कोन बनाते हैं, या आप कोई सॉक्स बनाते हैं, आप ब्रेड मेकिंग करते हैं, आप सोया मिल्क बनाते हैं, जहां पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट है, सोलर लैंटेन का कोई प्रोजेक्ट है, आप कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, गारमेंट्स का कुछ काम करते हैं, स्पाइसेस का काम करते हैं, जहां पे भी कहीं मशीन की इन्वॉल्वमेंट है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसको आप इस वेबसाइट पे जाके और इंडिविजुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। अगेन,
since the Honorable Prime Minister is laying a lot of emphasis on Digital India, on paperless economy, उसी के अंदर ये इनिशिएटिव है। जो लोग ऑनलाइन करना चाहें उनके लिए ऑनलाइन सुविधा है, और जो ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन मोड में भी सुविधा अवेलेबल है। इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। इसी में आप देखेंगे स्लाइड के अंदर, इस स्कीम के अंदर यदि आपको एप्लीकेशन देना है फंडिंग के लिए, यू डोंट नीड टू हैव एनी कोलैटरल्स। कोलैटरल्स का हिंदी वर्ड, कोई भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक आपसे जनरली कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उनसे आपसे बोला जाता है कि आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पिछले 3 साल का, आपकी कोई बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यदि आप एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने अभी 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, या आप एक पीजी स्टूडेंट हैं, या आप मिड करियर प्रोफेशनल हैं, या आप रिटायरीज हैं, आपको एक अच्छा कोई आइडिया मिला जिसको आप एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपने कभी भी कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कोई भी बिजनेस नहीं किया, सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी। इसलिए इस स्कीम के अंदर कोई भी आपसे कोलैटरल नहीं मांगा जाता। इसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसपे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज कि जब भी आप इस स्कीम में अप्लाई करें, सिर्फ आपने कम से कम 1 हफ्ते से लेके 3 मंथ्स का कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम किया हो, ताकि आपको बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज हो। सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, हाउ टू रजिस्टर योर एंटरप्राइज, टैक्सेशन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, बेसिक्स चीजें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मालूम हो, ताकि जब आपको कल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, आप उसको एक जुडिशियस वे में, उसको ऑप्टिमम वे में उसको यूटिलाइज कर सकें। ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आज का जो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, या जो आगे के आप सेशन अटेंड करेंगे, इसके लिए आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये उस ट्रेनिंग में काउंट होता है। This is very much eligible for entrepreneurship training, which is mentioned in the PMEGP program. Let us move to the next slide. Finance, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, या जो बहुत से एंटरप्रेनर आज इस सेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, फाइनेंस की बहुत इशू रहता है कि मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आई डोंट हैव फाइनेंशियल मसल पावर विद मी, आई डोंट हैव द फंडिंग विद मी, मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है, I am into so many family commitments which are there. I don't have too much of a saving to take a risk. So जो मैंने आपको पहली स्कीम बताई, इसी तरीके से ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो हम इस सेशन में आपको बताएंगे इन अ ब्रीफ वे, एंड इन द सब्सिक्वेंट सेशंस वी विल कवर देम इन डिटेल। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं NSIC ऑनलाइन फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। जैसा मैंने आपको बोला था, 2 मिनिस्ट्रीज, NSIC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, जो MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस हेडिंग से आप क्या समझ पा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूंगा। जनरली होता क्या है, आपने अपना वेंचर शुरू करना है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक जाते हैं, आपका कोई आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, आप जाते हैं और वहां पर आप कहते हैं कि मेरे को एक अपना स्टार्टअप का आइडिया है, मेरे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट है, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 22 लाख चाहिए। बैंक आपको कहता है आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और कुछ टाइम वो आपका क्रेडिट स्कोर और वेरियस अदर पैरामीटर्स में दे टेल यू वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। इन सब चीजों में हो क्या रहा है, आप बैंक के पास जा रहे हैं, लेकिन जो आप स्लाइड इस वक्त देख रहे हैं, इसमें आप बैंक के पास नहीं जा रहे, बैंक आपके पास आ रहे हैं। एक बैंक आपके पास नहीं आ रहा, मल्टीपल बैंक्स आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जैसा अगेन मैंने देखा है, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, और जितने भी आपको स्लाइड्स इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम दिखा रहे हैं, ये पहले टेस्ट किए जा चुके हैं, इनको इंप्लीमेंट करके देखा जा चुका है। सो एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस सेशन इज वेरी यूनिक। इसमें जो आपकी ग्रीवियंसेस हैं, आपके जो डे टू डे इश्यूज फेस करते हैं बैंक्स में, मार्केटिंग में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, उन सब का हम आपको एक पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन बता रहे हैं। ऑनलाइन फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर में यदि आप देखें साइट पे, आपको सिर्फ उद्योग आधार नंबर, अब अगेन ध्यान दीजिए,
उद्योग आधार नंबर। ये उद्योग आधार नंबर आपको जो हमने शुरू के स्लाइड में बताया था, जैसे आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस, वहां से आपको ये नंबर मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको स्लाइड में भी बोला था, कहीं भी गवर्नमेंट स्कीम में आपको बेनिफिट लेना है, उस स्कीम में अप्लाई करना है, यू नीड टू हैव योर उद्योग आधार नंबर। उसको कैसे रजिस्टर करना है वो हमने बताया, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम आगे के सेमिनार्स में भी डिस्कस करेंगे। सो उद्योग आधार नंबर आपके पास है, और बाकी जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, कितनी फंडिंग आपको चाहिए, 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपनी रिक्वायरमेंट देनी है। मुझे 2 लाख बिल्डिंग के लिए चाहिए, मुझे कोई मशीनरी खरीदनी है जिसके लिए मुझे 3 लाख चाहिए, मुझे सोलर लैंटेन बनानी है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसके लिए मे बी आई रिक्वायर 75,000 रुपीज। मेरे जो कारीगर हैं, वर्कर्स हैं, या जो बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, या कोई रेंट है एक्सपेंसेस, आई डोंट हैव माय ओन ऑफिस, मैं रेंट पे मैंने कोई जगह ली हुई है, उनके लिए आपको इसमें टेंटेटिव अमाउंट, प्रोविजनल अमाउंट फिलअप करना है। The moment you submit this application, there are various banks जिनके पास बैकएंड के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, उनके पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये एंटरप्रेन्योर राजामुंदरी से है, ये एंटरप्रेन्योर विशाखापट्टनम से है, ये एंटरप्रेन्योर दिल्ली से है, उसने ये रिक्वायरमेंट दी है, उसको वर्किंग कैपिटल अपने खर्चे के लिए, बिजली के लिए, सैलरीज के लिए, पानी के बिल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए 75,000 चाहिए, और उसको एक वैन खरीदनी है, उसको एक मशीन खरीदनी है, उसके लिए उसको 2 लाख चाहिए। अब बैंक्स जब आपके पास, उनके पास ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब वो आपके उस बेस पे वो आपको कितना लोन दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपका उद्योगधार नंबर है। आपको आपका सिबिल स्कोर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बैंक्स विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कि जो आपने इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट पे फिलअप की थी, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये बैंक्स आपको लोन देने के लिए अपना अप्रूवल देते हैं या अपना कंसेंट देते हैं, एंड देन यू कैन फॉलो विद दोज बैंक्स। सो द गुड पार्ट इज, आप बैंक के पास नहीं जा रहे, गवर्नमेंट ने इस फैसिलिटी के अंदर आपसे इंफॉर्मेशन ली, और सारे कनेक्टेड बैंक्स को जो इस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, उन बैंक्स को आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट दी। वो बैंक्स अपना जो उनका कैपिटल है, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके बेस पे आपको कितना लोन दे सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, दे विल गेट बैक टू यू थ्रू ईमेल। सो देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट रिक्वायर्ड, एवरीथिंग हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली, एवरीथिंग हैपेंस डिजिटली। अगेन छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप देखेंगे जितनी भी अभी हमने इंफॉर्मेशन शेयर की, कहीं पे भी आपको फिजिकली ऑफिस में नहीं जाना, कहीं पे भी आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट नहीं करने, कहीं पे भी आपको फीस नहीं देनी। इसको हम कहते हैं आप अपने खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं, बिजनेस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को, बाय हैविंग नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, बाय हैविंग गुड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर जगह से आज इंफॉर्मेशन आ रही है, उनमें से आपके उद्योग के लिए कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उससे बिना खर्चा किए या कम से कम खर्चा किए आप अपने स्टार्टअप को कैसे सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। आई विल अगेन emphasize the word successful, because when we conclude these sessions, the objective is not to make you an entrepreneur by just giving you a certificate, but to make you a practical successful entrepreneur. आगे हम चलते हैं। अगेन अब आपके सामने एक साइट है जो आप थोड़ा देख रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, उसकी आप हेडिंग देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वेदर इन इंडिया, इंटरनेशनली और लोकली काफी इंटरेक्शन होता है, जिनसे भी हम पूछते हैं आपका सेविंग अकाउंट कहाँ पे है, आपका करंट अकाउंट कहाँ पे है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, जनरली वो कहते हैं एक्स बैंक में है, ICICI में है, कैनरा बैंक में है, आंध्रा बैंक में, किसी भी बैंक में। लेकिन बहुत ही रेयरली कोई कहता है कि मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है। दिस इज अगेन व्हाट वी वांट टू हेल्प यू थ्रू दिस सेशन। जब आप करंट अकाउंट, पहले मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए करंट अकाउंट इज अ मस्ट। लेकिन करंट अकाउंट को खोलने के लिए यदि आप बैंक्स में जाते हैं, देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड, देन द बैंक आस्क आपका प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, देयर इज अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर देयर, जिसको हम KYC कहते हैं,
know your customer guidelines and that the bank has to follow. लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये इनिशिएटिव है, क्योंकि यदि आप देखें इंडिया में जो पोस्टल नेटवर्क है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत जगह बैंकिंग अभी पहुंची भी नहीं है, रूरल ब्रांचेस या रूरल एरिया में भी यदि कोई बैंक की ब्रांच है वो बहुत दूर है। पोस्ट का एक नेटवर्क है बहुत पुराना है, बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत डीप है, और जो पोस्टमैन है उसका एक हाउस टू हाउस रीच होता है, पोस्टमैन का एक कांटेक्ट होता है। उसी के लिए गवर्नमेंट ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ पोस्ट पेमेंट बैंक का एक इनिशिएटिव शुरू किया है जो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को मालूम नहीं होता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको अपने एंटरप्रेन्योर के लिए करंट अकाउंट खुलवाना है, दिस शुड बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। यू कैन हैव योर रिलेशनशिप विद अदर बैंक्स, बट टू मेक द थिंग्स सिंपलर, जिनमें खर्चा कम हो, इनमें बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो हम आगे के सेमिनार में कवर करेंगे। आज के सेमिनार में हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि आपको पता तो चले कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकोसिस्टम अवेलेबल है, क्या स्कीम्स हैं और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट यदि आपने खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है जहां पे कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पे आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है, बहुत से बैंक्स में इंटरेस्ट एनुअली मिलता है, यहाँ पे मिनिमम बैलेंस या बैंक चार्जेस यदि आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं मे बी मोर देन 5 टाइम्स ड्यूरिंग अ मंथ, यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है। तो यदि आप इस वेबसाइट को जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज प्रोडक्ट, मैंने स्पेसिफिकली इसमें करंट अकाउंट लिया है और नेक्स्ट स्लाइड में सेविंग अकाउंट लिया है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, please open your current account and saving account. Saving account you can open with just 100 rupees, just 100 rupees, और उसमें आपको 100 rupees के बाद you don't need to even maintain a minimum balance. Similarly current account with minimum documentation you can open. और जो पोस्टल नेटवर्क है वो इंडिया में बहुत वाइड है, कौन सी नियरेस्ट ब्रांच है वो आपको इस वेबसाइट से पता चलेगी। अगेन, हाउ टू लुक फॉर द ब्रांच, how to fill up the form online digitally, we will cover in the subsequent session. But in this slide I'm telling you, this is a very good option for businessmen, for entrepreneurs who want to open a current account, which is very much difficult or too much documentation is required from a regular kind of a bank. Let us move further. अब पोस्ट पेमेंट बैंक का एक और आप सुविधा देखेंगे। कुछ टाइम पहले आपने देखा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वक्त कैश विड्रॉल को लेके काफी कुछ इश्यूज हम टीवी पे देखते थे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव से क्या आपको फैसिलिटी मिला है, या जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ योर होम्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस पेंडेमिक विच इज देयर। अगर आप इस स्लाइड को पढ़ें, विड्रॉ कैश फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और थ्रू पोस्टमैन, आई वांट टू हाईलाइट थ्रू पोस्टमैन। पोस्टमैन जैसा मैंने आपको बताया घर टू घर उसका कनेक्ट होता है, और postal service even during the lockdown were not closed, or maybe during the demonetization was not closed. इसके थ्रू आप 10,000 रुपए तक कैश विड्रॉ अपने घर पे ही कर सकते हैं। द पोस्टमैन कम्स, उसके पास मोबाइल एटीएम है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, जिसके थ्रू आधार के थ्रू जो भी आपका कोई बैंक अकाउंट है, यदि आपका पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में है अच्छी बात है, यदि HDFC में है, कैनरा बैंक में है, सिंडिकेट बैंक में है, अगर आपका आधार लिंक है बैंक अकाउंट के साथ, जो ऑलमोस्ट सभी का हुआ है, यदि नहीं हुआ, हाउ टू डू दैट, हाउ टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद आधार, we will discuss in the subsequent session. But the objective is how the postman, how the post bank can help you to get 10,000 rupees sitting at your home. Now imagine there is a lockdown, there are some health issues, you have an emergency requirement, the banks are not open, or there is some any other kind of issue which is there. आप अपने घर बैठे through the postman, through the handheld device, you can get 10,000 cash, which is a big relief for situations where there are some kind of emergencies. So let us move forward. अब एक दूसरी स्कीम जो ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा, मुद्रा। पहले हमने डिस्कस किया PMEGP, अब दूसरी स्कीम जो आपने पेपर में काफी टीवी में
ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म्स पे काफी सुना होगा. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम फॉर दी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. सिंपल, हाउ टू मेक द थिंग सिंपल. 3 कैटेगरीज हैं इसमें, शिशु, किशोर और तरुण. जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, डेफिनेटली एनी वन ऑफ यू विल बी फॉलोइंग इन द 3 कैटेगरीज. यदि आपको कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट लेना है, आपको कोई हेयर ड्रेसर के लिए, कोई आपको सैलून के लिए, यू नीड अ चेयर, यू नीड सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आपको कोई कंसल्टेंसी, आपने कोई कोरियर कंपनी खोली है, उसके लिए आपको प्रिंटर्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सो यू कैन हैव अप टू 50,000 इन शिशु. यू कैन अप्लाई बिटवीन 50,000 to 5 लाख फ्रॉम द किशोर. एंड तरुण, अगर आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में. नो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएमईजीपी के अंदर 25 लाख तक और 10 लाख यदि सर्विसेज है. मुद्रा के अंदर आपका चाहे सर्विस है या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है, 50,000 से लेके 10 लाख तक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, वेरी सिंपल स्कीम which is implemented through the banks. Again, let me emphasize, PMEGP scheme is the best scheme. इस स्कीम में yes it is a good scheme, लेकिन इसमें आपको मुद्रा ब्रांच में जाना पड़ेगा. आईसीआईसीआई बैंक की कुछ डेडिकेटेड मुद्रा ब्रांचेस हैं, कैनरा बैंक की, बैंक ऑफ इंडिया की, सिंडिकेट बैंक की. सारी ब्रांचेस मुद्रा लोन्स में डील नहीं करती. हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर there are some identified branches which are called dedicated मुद्रा ब्रांच. उनमें आपको फिजिकली जाना होगा, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा. सो जो पीएमईजीपी स्कीम है उसमें आपको घर के कंफर्ट से और wherever you are, through your smartphone, through your desktop, you can apply online. Mudra scheme is the second in line, which is again a very good scheme, but for this scheme you have to go physically to the bank. दूसरी चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बारी क्या होता है, आपको मे बी 30 लाख का लोन चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो द हाइब्रिड मॉडल. यू कैन अप्लाई फॉर 9 lakhs इन द पीएमईजीपी. आपने कोई कोरियर कंपनी सेटअप करनी है जिसके लिए आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको प्रिंटर्स चाहिए, आपको सैलरी देनी है, आपको साइकिल चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, मोबाइल वैन चाहिए, पैकिंग इक्विपमेंट चाहिए. क्योंकि ये सर्विसेज के अंदर आता है तो पीएमईजीपी में आपको 9 लाख तक का मिल गया. और जो रिमेनिंग 3-4 लाख रुपीस हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ आपने एनवलप्स खरीदने हैं, आपने ग्लू खरीदना है, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर देयर, डे टू डे एक्सपेंसेस आर देयर, इन्वर्टर आपने लेना है, दैट यू कैन अप्लाई इन द मुद्रा. सो थ्रू दीज 2 schemes you can basically get the funding and you can start your venture. How to apply in the मुद्रा स्कीम, शिशु का फॉर्म कैसा होता है, किशोर स्कीम का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है, तरुण स्कीम का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है, और उसको कैसे फिलअप करते हैं, कैसे डिजिटली फाइल करते हैं, दैट वी विल बी कवरिंग इन द सब्सिक्वेंट सेशंस. अगेन, ये भी हमारे एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये एक स्कीम लॉन्च की थी जो अब आप इस वक्त देख रहे हैं. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट. पीएसबी, व्हाट इज पीएसबी? पब्लिक सेक्टर बैंक लोन स्कीम, 59 minutes. It's a very good scheme. 59 minutes में you can just apply for your loan and you can get to hear from the bank what is the status of your loan application. यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा. बहुत बारी एंटरप्रेन्योर्स को इशू आता है, हमने पर्टिकुलर बैंक में ऑनलाइन फाइल किया, एप्लीकेशन दी, लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं आया. 14 days have passed, 1 month have passed, there is no reply which has come. How to solve that issue? There is an RTI route which we will be covering in the subsequent session. But इस particular scheme के अंदर, as the heading says, the banks have to reply you back in 59 minutes. In not 1 day, in not 2 days, in not 14 days, in 59 minutes, you get to know the status of your loan application. So just briefly I will discuss. इसमें आप एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, आपका सेविंग अकाउंट होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके करंट अकाउंट्स होते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, और जो बैंक्स के ऊपर बैंक है, जो बैंक्स को रीफाइनेंस करता है,
जो बैंक्स को कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसको हम सिडबी कहते हैं। सिडबी इज एन एग्जांपल ऑफ द बैंक which gives funds to the banks for onward funding to the entrepreneurs. ये डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर से, रिटेल क्लाइंट से डील नहीं करता, लेकिन सिडबी की ये स्कीम है। सिडबी का नाम जैसे आप देखेंगे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, लघु उद्योग को डेवलप करने के लिए, लघु उद्योग को प्रमोट करने के लिए सिडबी का ही बैंक मुद्रा लोन को भी डील करता है। तो हम हेडिंग में देखते हैं बिजनेस लोन, होम लोन, अगेन गुड, वेरी गुड एग्जांपल। होम लोन यदि आपको चाहिए, आपको बिजनेस रिलेटेड लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, मुद्रा लोन चाहिए, जो हमने पिछले स्लाइड में आपसे डिस्कस किया। यू हैव टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन के लिए देयर इज नो एक्सपेंसेस, नो फीस, दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। वंस यू हैव रजिस्टर्ड, यू लॉग इन एंड देन you can apply in any of these categories or you can apply in more than one category. आपको होम लोन भी चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, you can apply according to your requirement. The good part is with 59 minutes you will get to hear what is the status, whether approved or not approved. If not approved, what are the issues? Not to discuss in detail as I will be covering it in the subsequent session. नेक्स्ट स्लाइड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रीफली आई विल जस्ट मेंशन 59 मिनट्स में आपको स्टेटस पता चलेगा कि जो आपकी लोन एप्लीकेशन है वेदर इट हैज बीन अप्रूव्ड। इफ इट इज अप्रूव्ड, गुड न्यूज, आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा 59 मिनट्स में। जो बिजनेस लोन है 1 लाख टू 5 करोड़, नो इट्स अ बिग अमाउंट, 1 लाख टू 5 करोड़। यदि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, उद्यमी हैं, आपने कोई मशीनरी लगानी है या आपने कोई शोरूम खोलना है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो 1 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, यू कैन अप्लाई इन दिस स्कीम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड, वी विल नॉट डिस्कस दैट, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। आपको मुद्रा लोन लेना है, मुद्रा जो मैंने आपको बताया 10,000 से 10 लाख। आपको पर्सनल लोन लेना है, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन आपको करना है, कोई फैमिली में एनी काइंड ऑफ एन इवेंट इज देयर, एनी काइंड ऑफ पर्सनल इमरजेंसी इज देयर, 20 लाख तक। होम लोन आपको लेना है, होम लोन अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ इज अ गुड अमाउंट। ऑटो लोन लेना है, आपने कोई वैन खरीदनी है बिजनेस के लिए, आपने कोई 3 व्हीलर खरीदना है, आपने कोई एनी काइंड ऑफ अ बाइक यू हैव टू परचेज फॉर योर कोरियर कंपनी, अप टू 1 करोड़। सो इसमें इन्होंने क्लियर कट आपको बताया है कि बिजनेस लोन 1 से 5 करोड़, पर्सनल लोन अप टू 20 लाख, होम लोन 10 करोड़ तक, और जो बाकी स्कीम्स हैं मुद्रा 10,000 से 10 लाख तक। सो आई गो बैक टू दैट स्लाइड, you can apply in this scheme, this is the website, and you will in 60 minutes you will get to hear the status. इसमें कुछ वीडियोस भी दे रखे हैं, ट्रेनिंग वीडियोस, लेकिन अगेन as I've told initially in the middle of the session also, here the purpose of this webinar is not to just tell you, the purpose is first to tell you what are the government schemes. इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, उसमें से आपके लिए रेलेवेंट स्कीम्स कौन सकती हैं और फिर उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो पहले हमने आपको एक पीएसबी लोन के बारे में बताया, अब इसमें कैसे अप्लाई करना है दैट वी विल बी कवरिंग फॉर ऑल द कैटेगरीज, वेदर इट्स अ पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और अ मुद्रा लोन। लेट अस मूव फर्दर। एमएसएमई डेटा बैंक, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। अगर आप पॉइंटर देखें जो राइट टॉप एंड साइड पे आई एम पॉइंटिंग इट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन जो हमने अपने अर्लियर स्लाइड्स में बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, जैसा आपको बताया गया था, इससे आपका बार बार इंटरेक्शन होगा। सो यू नीड टू कीप ऑन लुकिंग एट देयर वेबसाइट। वहां पे कोई नई स्कीम आई है, कोई गवर्नमेंट की नई अनाउंसमेंट है, जैसे अभी कोविड-19 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, लोन के लिए मॉरेटोरियम दिया है। व्हाट आर दो स्कीम्स, हाउ यू कैन बेनिफिट, हाउ यू कैन अप्लाई, यू कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। नाउ एमएसएमई डेटा बैंक, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी कंपनी, उनका जो सोल प्रोप्राइटर है, उनका जो स्टार्टअप वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। एमएसएमई डेटा बैंक, व्हाट डज द नेम सेज, एमएसएमई का डेटा बैंक। इसमें आपको अपना जो सोल प्रोप्राइटर है, 1 पर्सन कंपनी, यू नीड टू रजिस्टर इट।
Again, there is no fees for it, there is no expense for it, but it is required for you to register. और जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, you need to be registered. Unless and until you are registered, you are in the documents. How can the government help you? How can the government develop policies? MSME डेटा बैंक का कई ऑब्जेक्टिव्स हैं. गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो. MSME डेटा बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को ये आइडिया मिलता है किस लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. कोई डेयरी में ज्यादा काम कर रहा है, कोई सर्विसेज में कर रहा है, कोई हरियाणा में ज्यादा लघु उद्योग लगा रहा है, कोई मुंबई में ज्यादा लघु उद्योग लगा रहा है तो किस सेक्टर में लगा रहा है, ऑटोमोबाइल में लगा रहा है, टूरिज्म में लगा रहा है, या आपका एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सो दैट द गवर्नमेंट कैन गिव इंसेंटिव्स. जो उनसे अनरिप्रेजेंटेड सेक्टर्स हैं, जहां पे कम लोग काम कर रहे हैं, उसको कैसे उठाया जाए, या उसमें कुछ इश्यूज हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि मोर एंटरप्रेन्योर्स कैन कम इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर. लेकिन ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलेगी कैसे? ये मिलेगी थ्रू द MSME डेटा बैंक. सो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज रजिस्टर योर एंटरप्राइज, and again we will help you how to register it. Next slide. MSME shopping, very important site. Why I have put this particular slide? अगर आप इसमें देखेंगे heading MSME shopping powered by NSIC. If you can recollect, in the earlier slide I have mentioned National Small Industries Corporation, which is a central government undertaking. अब this is an e-commerce website. This slide is good for marketing those entrepreneurs जो देख रहे हैं opportunities कि मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया, मैंने अपना सैलून या अपनी कंसल्टेंसी, अपनी कोरियर कंपनी, या जो मैंने अपनी ट्रेनिंग अकेडमी भी खोल ली है, लेकिन हाउ शुड आई क्रिएट अवेयरनेस, हाउ शुड आई मार्केट इट, हाउ शुड आई सेल माई प्रोडक्ट्स? दिस इज द प्लेस फॉर यू. Again, there are many e-commerce companies in the private sector. Let me take some examples. You have Walmart, you have Amazon, you have eBay, you have Flipkart, and there are so many sites, Shopify. Mostly जो मैं एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्शन होता है, इन सभी वेबसाइट्स पे इंडिया मार्ट मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है. लेकिन जब से उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी विजिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, एंड लेट मी पुट इट द अदर वे अराउंड, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको स्टेशनरी खरीदनी है, आपको अपने बिजनेस के लिए छोटे मोटे जो रेगुलर ऑफिस सप्लाईज होते हैं, कंप्यूटर स्टेशनरी है, कंप्यूटर के आपको फोटोकॉपियर्स खरीदने हैं, वेयर टू परचेज इट फ्रॉम? नोबडी और वेरी रेयरली डू आई गेट टू हियर दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर अवेयर ऑफ दिस वेबसाइट. सो थ्रू दिस सेमिनार आई एम इन्फॉर्मिंग यू MSME shopping. If you go to this website, यहाँ पे जैसा कि आप इस होम पेज पे देख रहे हैं, कंज्यूमर, फैशन, हेल्थ, मशीनरी, इंडस्ट्रियल सप्लाई, स्टेशनरी, जो भी और ब्रांड्स, आपको सारे प्रोडक्ट्स जो भी आप एक रेगुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट से लेते हैं, वो यहाँ पे आपको एट अ मच लोअर कॉस्ट, एट अ मच कंपेटिटिव प्राइस मिलेगा. सो यदि आपको रॉ मटेरियल खरीदने हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने प्रेमाइसेस के लिए, अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यू कैन सोर्स योर रॉ मटेरियल फ्रॉम हेयर. और यदि आपको अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचना है, आपको अपनी सर्विसेज, अपनी ट्रेनिंग अकेडमी के बारे में एक विजिबिलिटी क्रिएट करनी है, दैट ऑल्सो यू कैन डू इट ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. सो देयर आर ट्विन एडवांटेजेस. वन इज यू कैन सोर्स रॉ मटेरियल, एंड द सेकेंड थिंग इज you can sell it. Now the chat box is not open, but I am very confident from experience that if I put you a question, how many of you have ever sold or tried to source your raw material from this particular website? Very few people will be saying yes. Not to go into that, again to help you out, which is the objective of this session, underlining the word practical entrepreneurship. Please register your products or services. क्या फायदा? आपने लोन ले लिया, आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने बहुत अच्छा कोरियर का एक ऑफिस भी खोल लिया, जब तक आपके पास क्लाइंट्स नहीं है. यदि क्लाइंट्स हैं, रेगुलर पेइंग क्लाइंट्स नहीं है, क्लाइंट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, या जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप महंगा खरीद रहे हैं, दिस इज अ वे यू कैन कट डाउन योर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड यू कैन इंक्रीज योर सेल्स. टू रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट,
It's very simple, and there are various schemes which again we will be covering in the marketing part. But I just want to show you this is a platform which is equivalent to e-commerce companies, whatever they are doing, whether it's Amazon, Flipkart and so on. MSME ग्लोबल मार्ट ये उसी का एक स्लाइड से रिलेटेड है. अगर आप देखें सेक्टर्स, अब जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं सब किसी ना किसी सेक्टर के अंदर आ रहे होंगे. ये आप अभी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सम ऑफ यू मे बी फ्रॉम एग्रो, ऑटोमोबाइल, आयुर्वेदिक, हर्बल, बाईसाइकिल, केमिकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन एंड गारमेंट, फूड एंड बेवरेज. जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, you can buy it from here, you can sell it also here. Now again one more advantage is there. Even if you are not an entrepreneur, you are a retail buyer, you can still buy it from here and you can compare the prices with other e-commerce companies. If you are getting a price, maybe you want to purchase a TV, you want to purchase a computer, you want to purchase a photocopier, you want to purchase a washing machine, just check what is the price on this website, what is the price on a competitive website. टॉप पे अगर आप देखेंगे टेंडर्स, ट्रेड रीड्स, रेटिंग, गवर्नमेंट सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के लिए. मेरा बहुत फोकस रहता है मार्केटिंग पे, क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपने अपना सर्विस के लिए अपना शोरूम, अपना ऑफिस स्पेस भी खोल लिया, लेकिन यू नीड टू अर्न द रेवेन्यू, यू नीड टू हैव अ रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम. अदरवाइज हाउ विल अ पर्सन थिंक that I can become a successful entrepreneur? उसके माइंड में हमेशा ये डुअलिटी रहेगा कि मैं एम्प्लॉयमेंट में जाता हूं, वहां मुझे फिक्स सैलरी मिलती है, मे बी आई हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, मे बी द वर्क इज मोनोटोनस. लेकिन एंटरप्रेन्योर में देयर इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम इज नॉट देयर. That's the reason sometimes the entrepreneurs, even if they have a good potential, they are not able to take up that particular thing. This is what the objective of this webinar is, to give you confidence that how you can sell your product and services to the government, how you can export your product and services, where to get genuine leads, where to find good buyers, where to find buyers who will make you timely payment, who will give you repeat orders, who will value quality, who will not compromise on quality, and which I believe as an entrepreneur you should ensure that there is a quality, whether it is product quality or whether it is a quality in service delivery. So coming back to this part, टेंडर, कौन से गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, ट्रेड लीड्स, फॉरेन बायर्स, उनके बारे में, किसी को गारमेंट्स का इंपोर्ट करना है, किसी को सर्विसेज का कुछ आउटसोर्सिंग का काम इंडिया को देना है, जितने भी और बायर्स और सेलर्स हैं उनकी रेटिंग क्या है, क्या वो टाइमली पेमेंट करते हैं, क्या वो जो उनको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उनमें डिफेक्ट्स तो नहीं होते, गवर्नमेंट के कौन से ऑर्डर्स हैं, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. गवर्नमेंट का कोई सेमिनार हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई एक्सपो चल रहा है, जैसे ट्रेड इंडिया आपका दिल्ली में होता है, या वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम दे कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, इन्वेस्ट हिमाचल प्रदेश, उनकी आपको इंफॉर्मेशन मिले और उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकें. सो देयर इज अ टोल फ्री नंबर ऑल्सो, वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर देयर which you can take the benefit under this marketing scheme. We will cover it in detail later on. Again, a very important website, Mahila E-Heart. उसके आप नीचे यदि देखें, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे द वुमेन इज अ एंटरप्रेन्योर and maybe she is working with her husband, she is working with her brother, she is working with her father. This is a very good website from the Ministry of Women and Child Development, jahan pe that woman entrepreneur can showcase her products, can showcase her services. It's an online marketplace. यहाँ पे कोई listing fees नहीं है जो आपको other e-commerce companies, private sector companies में देनी पड़ती हैं. यहाँ पे कोई discount revenue नहीं है. What is a discount revenue? We will discuss it later. But यहाँ पे अगर 100 रुपीस की आप शर्ट इस पे लिस्ट करते हैं और मैं एक बायर हूं, मैं 100 रुपीस की शर्ट इस वेबसाइट से देख के खरीदता हूं, तो जो 100 रुपीस की मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा वही 100 रुपीस आपको मिलेंगे. जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वहां पे क्या होता है, मैंने 100 रुपीस आपको दिए, आपको 90 रुपीस मिलते हैं, आपको 85 रुपीस मिलते हैं. वाई? बिकॉज दैट वेबसाइट charges a fees. They are giving you an online market
वो आपको एक ऑनलाइन चौपाल दे रहे हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसलिए इन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन कट डाउन योर कमीशन कॉस्ट, you can cut down your market listing fees, and still you can get global customers and the added safety that you have the backing of the government. दूसरी बात, यदि आप अपने लेटर हेड पे मेंशन करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे मेंशन करते हैं, these are some very very important points which will be covering later, कि मेरा जो मार्केटिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैंक आपसे पूछेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस वेंचर बहुत अच्छा है, हाउ डू यू वांट विल मार्केट योर प्रोडक्ट्स, आप कैसे रेवेन्यू लाएंगी, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी कंसिस्टेंट इनकम है और जिससे आप बैंक को ईएमआई टाइमली दे सकें। इन एडिशन टू अदर वेबसाइट्स लाइक वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ईबे, एग्जीबिशंस, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जीबिशंस, द मोमेंट यू मेंशन इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि आपने इन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। क्योंकि जो बैंकर्स के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं, हर एक में ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही कंटेंट होता है जिसको बहुत बारी कट पेस्ट भी किया जाता है, लेकिन जब ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बैंक के पास आती हैं, उनको भी लगता है दिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर हैज डन हर होमवर्क वेल, शी इज रियली अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, she knows, very important word I am about to say, she knows how to cut down her working capital, how to cut down expenses, क्योंकि इसमें आपको कोई कमीशन नहीं देना, इसमें आपको कोई लिस्टिंग फीस नहीं देनी और आपको ग्लोबल ऑडियंस मिल रही है, प्लस द एडवांटेज दैट यू आर ऑन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। सो महिला ई-हार्ट इज अगेन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। The next one, as you can see, and then maybe I'll be like concluding today's session in the next 10 minutes, and then if there are any Q&A through the chat, we will take that. So SIDBI, Mudra, this is again a very good financial scheme. अभी तक हमने मुद्रा देखी, हमने PMEGP का देखा, हमने 59 minutes पब्लिक सेक्टर बैंक्स का देखा। ऐसी एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वेबसाइट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। यदि आप एक महिला उद्यमी हैं, यदि आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और यू आर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, यू आर फ्रॉम एन SC और एन ST ट्राइब, to give you a fair ground, to motivate you, to encourage you to become entrepreneur, this particular stand up India scheme, stand up India means what? To make you stand on your feet, आत्मनिर्भर बनना। इस स्कीम के अंदर from 10 lakh rupees to 1 crore rupees you can avail the loan for your business project. It's a very good scheme. It is monitored. It is managed by Small Industries Development Bank of India. इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको हर तरीके का मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले यदि आप टॉप पर देखें, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सैंपल प्रोफाइल्स दी हुई हैं। आपने हनी का काम करना है, आपने सोलर लैंटर्न का काम करना है, आपने सोयाबीन का मिल्क बनाना है, आपने ब्रेड्स बनानी है, यू हैव टू मेक कंप्यूटर निटेड गारमेंट्स, you have to make stuffed toys, you have to make paper roll, you have to make masks, you have to make personal protective equipment, you have to make hand sanitizers. So what are the project reports? Sample project report has been given on this. Then दूसरी part है LDMs, connect centers. Connect centers and LDMs are local district managers all over India. इस particular scheme के अंदर local district level के अंदर हमारे देश में 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक स्टेट के अंदर एक कॉन्टेक्ट सेंटर है, लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, जिससे आप ईमेल, ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक मेंटरिंग असिस्टेंस, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, हाउ टू रजिस्टर योर एंटरप्राइज, ऑल दोज फैसिलिटीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स and for the entrepreneurs from the scheduled caste, scheduled tribe community is also available. Let me take you to the next slide. इसी स्टैंड अप इंडिया में यदि आप नीचे देखें, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली एट अ बैंक ब्रांच भी जा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर यू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली। यदि आप ऑफलाइन मोड में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, देन यू कैन गो टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑल्सो। तो इसमें तीनों ऑप्शन दी हुई हैं, अप्लाई ऑनलाइन, डायरेक्टली यू कैन गो टू अ बैंक ब्रांच जो आपका रेगुलर बैंक भी हो सकता है, और यू कैन कॉन्टेक्ट द LDM, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर
ऑलरेडी इस स्कीम का ट्रेंड एक एसोसिएट है, उसको इस स्कीम की सारी नॉलेज है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनाने में हेल्प कर सकता है, उसकी फाइलिंग में हेल्प कर सकता है। क्योंकि हमें ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम मेकिंग here, we should not assume that in India everyone is very much literate, everyone speaks very nice English, or everyone is very much savvy in Hindi speaking, or everyone is very much familiar with government documents. No, अगर हमने स्किल डेवलपमेंट को एनकरेज करना है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रिमोट एरियाज में एनकरेज करना है, जहां पे उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, बट दे मे नॉट बी लिटरेट, they may not have even gone to a school. So is entrepreneurship not for them? No, that is the objective of this workshop. The government is there to help, not to ask them come to their office. The government will go and reach them at their native place and will help them to do the documentation. It sounds good, but again, the objective is, this is what we are doing at the School of Open Learning. We are having students who are coming from all over India. We are having a program of internship and volunteering, so that the students, while they are studying, they can do small internship projects, they can do small volunteering projects in their district, in their states, and they can help these entrepreneurs to access these schemes. What advantage is there? The beneficiary, the entrepreneur, will be able to apply in the government schemes because he or she is not literate, or maybe they don't understand the government documentation. और स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट है, उसको 2 महीने 3 महीने के लिए एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है. By the time he finishes her MA, her PG, or maybe her graduation, she can say that during my academic years, I did this particular internship project, 2 months, 3 months, and we will give you a certificate for that particular experience. So that once you apply in any job or you apply for any kind of a funding, you can very proudly mention in the project report that during my academic years, or even after passing out, I did this particular internship project. This will help you to gain skills, this will help you to gain experience, and it will put you at a much more headstrong advantage compared to other applicants who are not able to utilize their time in a productive way. So let us move further. I told you about this scheme. Now I will be covering small like quick slides. Skilling. एंटरप्रेन्योर आप तभी अच्छे बनेंगे जब आपके पास स्किल होगा. किसी भी काम को आपने शुरू करना है, आपने सोलर लैंटर्न बनाना है, मोबाइल रिपेयर करना है, पेपर रोल बनाना है, और आजकल मास्क बनाने हैं, आपको पीपीई बनाना है, हैंड सैनिटाइजर बनाना है, आपको फेस शील्ड्स बनानी है. कैसे आएगी जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी. सो टू स्टार्ट एनी वेंचर यू नीड टू हैव स्किल. स्किल ना होने से क्या डिसएडवांटेज होते हैं? आप यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, द मोमेंट यू मेंशन दैट यू आर स्किल्ड and you are skilled from the government accredited agencies, you have done a genuine good program, it gives the banker a good confidence in you. क्योंकि वो आपसे कोई कोलेट्रल नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई बैलेंस शीट नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई फिक्स डिपॉजिट, उनको अगर आपको फंडिंग देना है, उनके पास सिर्फ एक मापने का तरीका यही है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना स्ट्रांग है, क्या आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक नॉलेज है, क्या आप उस वोकेशन में स्किल्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप मार्केटिंग कर पाएंगे, कहां पे मार्केटिंग कर पाएंगे, कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे, इतने सारे कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाएंगे. सो ई स्किल इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फोकस, स्किल इंडिया, कौशल विकास, अपने को स्किल करिए, अपने को हुनर करिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट जॉब फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स. सो हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, क्योंकि अगेन देयर आर सो मेनी मशरूमिंग स्किल सेंटर्स विच आर देयर अक्रॉस द कंट्री. विच इज अ गुड ई स्किल सेंटर, जहां की जो ट्रेनिंग फैकल्टी है, जो कंटेंट है, जो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट है, जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, is it's of a high quality. You will be, whatever time you spend, time is also money, whatever time you spend, you need to value that. क्या वो जो आप वहां टाइम स्पेंड करेंगे, उसका जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जो लर्निंग मिलेगी, whether that will help you or not. This is the reason the Ministry of Skill Development, जैसा आप टॉप पर देख रहे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है, दिस ई स्किलिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड, जहां पे आप दरी देख रहे हैं, एनरोल फॉर अ कोर्स, एनहेंस योर स्किल, 100+ ऑनलाइन कोर्सेज, एंड वेरी गुड पार्ट इज
it is not in English only. It is in Hindi, and more important, it is in regional languages. So you have Hindi, you have English, and you have regional languages. बहुत बारी issue ये होता था only English. Then after some time we saw an improvement, Hindi and English. And now, because India is a very large country, India has a very huge diversity. So we have to cater to all. We have to address the larger community. We cannot work in silos. इस particular initiative के through you can access the training programs in your local language, and it is seen if you are able to get the training content in a regional language. Think about a person who is sitting in Madurai, who is sitting in Kanchipuram, who has not gone to a formal education. उसके लिए it's a big thing. उसको एक training मिल रहा है, उसका certification मिल रहा है, and then she can become an entrepreneur. So these are the platforms which are there. नीचे यदि आप देखेंगे, एक नीचे let me highlight it, National Entrepreneurship Awards. Very important thing. Again, in my experience, I have seen National Entrepreneurship Awards have been started few years back by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. इसके अंदर बहुत सारी categories हैं for the Divyang entrepreneurs, for women entrepreneurs, for mentors also, a very important category. अभी तक क्या था, entrepreneurs के लिए yes, there are some kind of awards, और वो भी अवार्ड उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए थे जिनका कई सालों से काम चल रहा है. लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने टू मोटिवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू हु हैव नो फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड बट मोटिवेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, they are now looking to become job creators. So National Entrepreneurship Awards में ऐसे new entrepreneurs के लिए there are various categories of award. Number one. Second thing, there are Women Entrepreneurship Awards. Again, another good categories जो entrepreneurs को train करते हैं. Mentors का एक बहुत important role है. Mentorship means what? Pro bono. Mentor का कोई financial interest नहीं है. He or she is giving you training, is helping you through their experience, how to apply in a government scheme, how to do marketing, how to prepare a project report. To recognize people, to recognize those people who are giving their time, who are giving their experience to groom entrepreneurs, there is a category of award which has been created for the mentors also. Again, ये तो दो चीजें हो गई award की, और जो एक मैं lighter way में कहना चाहता हूँ, very important, to fund your business. There are some success stories which I will share you in following session. Some entrepreneurs said कि मैंने जो अपना प्रोजेक्ट था उसको फंडिंग करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, मुद्रा, पीएमईजीपी को ना अप्लाई करके मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा था, उसमें मैंने काम किया और मैंने अवार्ड्स का जो पैसा मिला, अवार्ड्स में जो अवार्ड मनी मिलता है, उससे अपने बिजनेस को फंड कर लिया. So it's a very unique way of looking at funding. So the award money which is there, which you get, there are so many entrepreneurship awards. You can apply in those awards, and whatever prize money is there, there are various kind of incentives. कहीं पे आपको 6 month, 3 months के लिए incubation center में रहने को मिलता है, boarding, lodging मिलती है, mentoring मिलती है, that is also good. कहीं पे आपको award money मिलता है, you can use that award money for your working capital. कुछ तो आपके expenses उससे meet out होंगे. आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में द मोमेंट यू मेंशन दैट फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, दैट अगेन गिव्स एडेड एडवांटेज, एडेड वैल्यू टू योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सो हाउ टू अप्लाई इन दीज अवार्ड्स वी विल कवरिंग इट इन द अदर सेशन, बट ई लर्निंग के लिए दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म. सो ट्विन एडवांटेज, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स एंड ई स्किल इंडिया. This is again an important slide. These are few concluding slides for today's session, and then we will be covering up in the subsequent session. Biotechnology Industry Research Assistance Council, very important website. More so in today's time. जैसा हमारे आसपास आपने देखा है, since March, globally there is a problem, the health emergency which is there, the pandemic, the COVID-19 issue which is there. So the government of India has invited entrepreneurs to come out with solution, with health related solutions, medical devices, medical innovations, whether it can be sanitizers, whether it can be PPE or X-ray machines, ventilators, how to apply in the government scheme to get funds. क्योंकि जो medical devices हैं, they are good, they require huge investment.
As an individual, it will be quite difficult to apply and get the funding. This is a website which only looks into biomedical devices, health related innovation, medical innovation. You have a medical background or you don't have a medical background, but you have some idea that this is something I want to make, which can help the nation, which can help the community. Then this particular scheme is there to provide you funding support, to provide you mentoring support. और एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, which medical device should I make, which ventilator, which N95, how to make it, how to make an X-ray, how to make a portable ultrasound machine, very important, how to make a drone which can basically carry pharmaceutical medicines from location A to location B, how to make robots for hospital settings. All these ideas, there is a medical innovation data bank which has been created. This is a very important thing which I'm saying, which I will be covering later. How to identify which project to take up, कौन सा काम मैं शुरू करूं, कौन से प्रोजेक्ट को मैं शुरू करूं जिसमें मुझे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी, और यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट विल हेल्प मी. सो वी हैव क्रिएटेड अ डेटा बैंक जहां पे ग्लोबली कौन कौन सी ऐसे मेडिकल डिवाइसेस हैं, कौन कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट हैं जो अफ्रीका में सक्सेसफुल हैं, जो यूएस में सक्सेसफुल हैं, जो नेपाल में सक्सेसफुल हैं, एंड इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन इंडिया. We can adapt it, we can customize it, so you don't need to look here and there. बहुत दफे opportunity identification is also a big issue. इस पे I am laying a lot of stress, क्योंकि जैसे कहते हैं आजकल आपने 10+2 किया, there are so many courses, BCom, MCom, artificial intelligence, machine learning, you have animation, multimedia. Similarly, entrepreneurship में भी that also looks good, that also looks good, that also looks good. But at a one time, you need to do something which suits your profile. कई लोग होते हैं, they have a financial stability, they can invest and they can wait. Some don't have that financial stability, they are looking for quick returns. So which opportunity will be good for you? That is something I lay a lot of focus, how to help you based on your profile, which product to take up to start your entrepreneurship project. So this particular website helps you for medical devices, for health related equipment, for health related innovation. Let us move further. This is again the slide which I discussed with you, NSIC. NSIC is a very important undertaking. इस particular website के through जो हम subsequent webinars में भी cover करेंगे, आपको as an entrepreneur बड़ी सारी support services मिलेंगी. जो हमने आपको marketing के लिए बताया था, MSME Mart, MSME Shopping, that is also from NSIC. और यदि आप right side पे देखें, इस पे लिखा है intermediary services. What is intermediary services? Intermediary services में जो MSME shopping है, जो हमने आपको marketing के लिए दिखाया था, उसमें कैसे register करें. और नीचे आप देखेंगे virtual tech mart. Virtual tech mart means what? इस particular website पे आप अपनी virtual exhibitions कर सकते हैं. Virtual exhibitions what means what? From your mobile phone, you can make a movie, you can make a small clipping or a video of your product, a 3-dimensional video. You can make a video of your service setting. आपका कोई training academy है, कोई coaching institute है, आपका जो भी काम है, or you can make a video of yourself where you can mention that this is what all you do. And under this government platform, we can put that particular video of your business, of your project in a virtual exhibition. 30 days, 60 days, there are various schemes which are there. The good part is that you don't need to make heavy investment of putting up a stall. You don't need to physically travel. You can have a virtual exhibition which the people from across the world can look at it. In your letterhead, you can mention a link. In your emails, you can mention a link that if you want to know about my product, if you want to know about my service, kindly go to this particular virtual exhibition. So this is again a very good platform, a facility which is available from the government. Again, in my experience, I have very rarely come across students or entrepreneurs who are aware of this particular schemes. But what is the objective? Either you look at the glass which is half empty, or you look at the glass which is half filled. The objective of this particular webinar is to give you information that is validated, information that is accredited, information that has been tried and tested,
to make you aware from so many of information overload. And once the information has been given to you, then to help you apply in that particular information. So those twin objectives are there, and in your language, at your doorstep. It is not that you have to come to Delhi or you have to come to a particular place. Through the student internship program, through the student volunteer program, through the various kind of MOUs with the local colleges within the Delhi University, which we plan to like enter into, we will do an outreach effort. So all these initiatives will help you to access and participate in the government skill development and entrepreneurship program. The last slide for today, and then we will be wrapping up, and then we will be covering the subsequent slides in the next follow-up session. Marketing intelligence cell, again, a very important slide. Just look at it. If you have to start any business, सबसे पहले आप जानना क्या चाहेंगे कि जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाह रही हूँ, मैं लेदर का, जूतों का, फुटवियर का, फूड प्रोसेसिंग का, कोई खाने पीने का, जेम्स का, ज्वेलरी का, या टेक्सटाइल का, कपड़ों का, इंजीनियरिंग का, एग्रीकल्चर, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, कुछ जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस डील करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी डिमांड के बारे में, उसमें कितना पोटेंशियल है, इंडिया के अंदर, ओवरसीज, विद इन इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश की क्या पॉलिसीज हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके. अगर कोई एक्वा रिलेटेड है जहां पे सी की आवश्यकता है, तो केरला, तमिलनाडु, ऐसी स्टेट्स की क्या पॉलिसीज हैं. मेराइन कल्चर. दूसरा, ब्लू ओशन इकोनॉमी. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का देयर इज अ वेरी मेजर इनिशिएटिव, ब्लू ओशन इकोनॉमी, हाउ यू कैन बेनिफिट इन द ब्लू ओशन इकोनॉमी. तो उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं which come at a very high price, but from this government platform you can get all those marketing reports, ताकि आप एक informed decision ले सकें कि क्या मेरे लिए ये अच्छा रहेगा, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जाना, मेरे लिए कितना इनकम पोटेंशियल है, इसमें क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगी उसमें आई कैन मेंशन कि जो मैं अपना ये प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहता हूं, उसका मार्केट पोटेंशियल, आई सी अ लॉट ऑफ मार्केट पोटेंशियल. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ द फंडिंग इज गिवन टू मी, आई विल बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. और वहां पे आप इन रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं कि NSIC का जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल है, उसमें ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि ब्लू ओशन इकोनॉमी के अंदर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, एग्रीकल्चर के अंदर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, मेडिकल इनोवेशन के अंदर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, अपैरल एंड टेक्सटाइल के अंदर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, खादी इंडिया के अंदर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. सो ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा बैंकर, I will feel very much impressed कि how nice project report has been prepared. You have done your research in a very nice way. Whatever sources you are quoting in your project report, they're all from accredited government websites, and the banker will be more inclined to give funding to your business because they themselves are feeling confident that whatever data you are quoting, that data is a very good primary data. It is just not a secondary data, it's a primary data from the Government of India website. So for today's session, I am concluding today's session here. Hope आप सबसे I feel that you may have definitely got some relevant information. आपकी जो भी queries हैं, you can mention in the chat box. Those queries will come to me. And जैसा मैंने आपको already बताया, जो भी queries हैं, वही हम इन webinars में cover कर रहे हैं. तो जो आपकी queries आएंगी, वो mostly या तो हमारे पास जो डेली इंटरेक्शंस होती हैं उसमें भी आई हैं, लेकिन स्टिल वी वेलकम योर सजेशंस, वी वेलकम एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एनी पर्टिकुलर इशू यू वांट टू कवर और एड्रेस. वी विल बी मोर देन वेलकमिंग एंड देयर टू हेल्प यू. सो आई थैंक यू ऑल. मैं सभी का धन्यवाद करता हूं. आई ऑल्सो थैंक द एस्टीम्ड फैकल्टी एंड द टेक्निकल स्टाफ एट द स्टूडियो ऑफ eCell who have facilitated this session. Thank you all and have a nice day.